ओके देखो, मैं ये शीट भी देना भूल गया ना, आज दूंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. Question is: a ball is projected with initial velocity. A ball is projected with initial velocity 20√3 meter per second at an angle 60 degree with the horizontal. The time interval after which the velocity vector makes an angle 30 degree with the horizontal. तो मानो ये ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, ऐसे करके आया. So at any time, suppose velocity vector makes an angle 30 degree with the horizontal. तो यहाँ से यहाँ पे मतलब 60 डिग्री से ये 30 डिग्री होने में कितना टाइम लगा? Try this question. Everybody understand the question? Yes, sir. Yes, sir. Try करो. देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20√3. सो हम लोग बोल सकते हैं along the x axis, that is ux, that is 20√3 cos 30 डिग्री, और ये जो है that is uy है, that is 20√3 sin 30 degree. Is it clear? Yes, sir. Whatever you have acceleration, that is acceleration due to gravity, which is always downward. So acceleration along x-axis is 0. That means no acceleration along the x-axis, and as no acceleration along the x-axis, so that is the constant, the velocity is constant. Yes or no? Yes or no? x-axis का acceleration नहीं है, तो x-axis का velocity constant है. अब देखो यहाँ का velocity along x-axis और ये velocity along x-axis same होगा because constant है. Yes or no? हाँ sir. तो मेरा ये वाला velocity देखो, velocity भी दिया है, angle भी दिया है, तो 20√3 sin cos cos 60 degree is equals to यहाँ का हम लोग वेलोसिटी v माना है, तो v, और बोला है when the angle is 30 degree, so I can write cos 30 degree. They are equal. Yes or no? Can we write this? That v is the velocity at that instant and theta is the angle. So along the basis cos, so I can write v cos 30, that is equals to 20√3 sin 30 degree, cos 30 degree. Is it okay, everyone? Yes, sir. तो यहाँ से देखो मुझे v का वैल्यू मिल जाएगा. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि along the x-axis my velocities always remain constant. So my initial velocity is given, initial angle is given, so I can convert it into velocity along the x-axis 20√3 and angle is 60 degree, so cos 60 degree. Now we suppose when the angle is 30 degree with the base, let the velocity is v, so v cos 30, so they are same. So 20√3 cos 60 is 1/2, that is v cos 30, that is √3/2. From this we can say v is equals to 20 meter per second. Clear? Is it okay? Yes. Yes, sir. So when your velocity is 20 meter per second, so now you actually basically from this data ki both the angle is given, initial and final, so you can find out the data velocity. Once you find out the velocity, we can write this is
velocity sine 30 degree, and the initial velocity, you know, yes or no? And you have to find out the time. We use Vy equals to Uy plus Ayt. My final velocity is V, which I already find out, 20. Sine 30 degree, 30 degree is given. Initial velocity is given 20 root 3 sine 60 degree is plus minus 10 motion under gravity into t. So what you have, 20 sine 30 is how much? Half. 20 root 3 sine 60 is how much? Root 3 by 2 minus 10t. So 10t is 30 minus 10, that is 20. T equals to 2 seconds. Yes or no? Is it okay? Yes, sir. So next question. हाँ, हटा दे इसको. नहीं सर, एक सेकंड. हाँ सर, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. देखो बड़ा सुंदर क्वेश्चन. Try to understand the question. A harbor enemy ship is at a distance of 8 root 3 meter from the security cannon. मतलब ये यहाँ पे एक सिक्योरिटी कैनन है जहां से गोली निकलता है. ठीक है, सिक्योरिटी कैनन से मानो 180 रूट 3 मीटर पे एक हार्बर एनिमी शिप है. ओके, at a harbor enemy ship at a harbor enemy ship is at a distance of 180 root 3 meter from the security cannon having a muzzle velocity. यहाँ पे जो है इसका जो muzzle velocity है, muzzle velocity मतलब गोला जो निकलता है उसका स्पीड, muzzle velocity है 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड. Now question is number 1, to what angle must the cannon be elevated to hit the ship? मतलब पहला क्वेश्चन है मेरा एंगल थीटा कितना होगा so that ये जाके ये जो मजल है जाके शिप से टकराएगा. क्लियर एवरीवन? सर फाइंड क्या करना है वो एक बार. Angle, for what angle you project that can in what angle you incline the cannon. What to what angle must the cannon be elevated? Clear? Yes sir. Second part of the question, what is the time of flight? ये जो यहाँ से यहाँ गया, time of flight क्या है? ठीक है, ठीक है. Yes sir. Third part of the question is that how far should the ship be moved from its initial position so that it become beyond the range of the cannon? मतलब ये जो मेरा enemy ship है ये यहाँ से और कितना दूर चला जाएगा कि इसका मैक्सिमम रेंज के बाहर आ जाएगा. यही बोल रहा है ना, मैक्सिमम रेंज के बाहर चला जाएगा तो क्या ये कैनन इसको छू पाएगा? नहीं सर. So you understand the question, how far should the ship be moved from its initial position so that it beyond the range of the cannon? And you can use the value of g, you can use the value of g 10 meter per second square. Okay, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि माय रेंज सर मेरा पहला वाला 30 डिग्री आया फर्स्ट लेवल. कितना आया? 30. हाँ देखो 30 डिग्री. हाँ, सर हाँ, 30 डिग्री. हाँ हाँ बाबा देखो तो रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा बाई जी. अब यहाँ पे बोल रहा है रेंज इज 180 रूट 3 एंगल 60 इंटू 60 साइन 2 थीटा बाई 10
तो ये 0 0 कट गया, ये 0 इसके साथ कट गया, 6 12 3 6 18 कट गया, 3 3 6 कट गया। तो साइन 2 थीटा जो आया, साइन 2 थीटा मेरा आया √3/2 ना। तो 2 थीटा कितना आएगा 120 डिग्री, तो थीटा आएगा 60 सर डिग्री है ना। 60 डिग्री आएगा ना, √3/2 is 60। √3/2 नहीं कितना? सर, ओह सॉरी सॉरी, सर साइन 60 होता है ना। अरे हाँ हाँ, माय मिस्टेक सॉरी, 60 डिग्री 30 है तो। हाँ सुनो ना, 30 डिग्री आएगा, आएगा ना। हाँ सर। हम लोगों को ये भी मालूम है, हम लोगों को ये भी मालूम है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास कि सेम रेंज हम लोग जाने के लिए कंडीशन होता है θ1 + θ2 90 डिग्री, होता है कि नहीं? हाँ सर। अगर एक एंगल 30 होगा तो दूसरा 60 भी हो सकता है सेम रेंज के लिए। हाँ सर। तो हम लोग दोनों कम करेंगे ना, कर सकते हैं ना कि 30 पे भी मिल सकता है 60 पे भी मिल सकता है ना। हाँ सर। क्योंकि तुमने 30 निकाला और आंसर में मानो 60 है, सो तुम बोलोगे जा ये कैसे हो सकता है। सो बोथ आर पॉसिबल। नाउ फॉर बोथ टाइम ऑफ फ्लाइट 1, सर वो 30 के लिए 6 सेकंड है मेरा। हाँ 2u sin 30 sin θ/g फॉर्मूला है। सो माय टाइम 1 के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। सो पहला वाला के लिए आएगा 2 × 60 sin 30 डिग्री बाई 10, तो ये आ जाएगा 2 × 6 × हाफ, दैट इज 6 सेकेंड। और दूसरा वाला सर दूसरा वाला के लिए 104 सेकंड। sin 60 डिग्री बाई 10, तो ये आ जाएगा 2 × 6 × √3/2, दैट इज 6√3 सेकेंड, है ना। यस सर, तो मल्टीप्लाई करने से 104 सेकंड। हाँ, अब अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझे रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है u²/g। सर 360 तो मीटर 360 मीटर मैक्सिमम रेंज। 60 × 60/10, दैट इज 360 मीटर, है ना। तो ये है 180√3। तो क्वेश्चन में बोला है कितना फार्दर डिस्टेंस ये मूव करेगा सो दैट इट इज बियॉन्ड द रेंज, है ना। सो द आंसर इज फार्दर डिस्टेंस travel that is 360 minus 180√3 मीटर, है ना। 48.6 मीटर। whatever, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। सर So एग्जाम now- में यहाँ तक लिखने से मार्क्स मिलेगा? हाँ पूरा मार्क्स मिलेगा। सर और अगर हम लोग वो 60 को कंसीडर नहीं किए, सिर्फ 30 को लेके ही किए तो ठीक बेसिकली रहेगा। करना चाहिए, करने के लिए नहीं करोगे तो एक का हाफ मार्क्स काट सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए क्योंकि कर देना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन इज a piece of marble is projected from the from earth's surface with velocity 25 meter per second, 25 meter per second. 2 seconds later it just clear a height of 2 meter, 5 meter. 2 seconds later it just clear a height of 5 meter. मैंने what is the angle of projection, मैंने u को कितना एंगल में प्रोजेक्ट करेगा so that it clear a height of 5 meter. Clear everyone? 2 सेकेंड Yes, बाद 5 मीटर को क्लियर करेगा। So try this question. अभी शुरू हुआ ना। Yes. Equation of trajectory. In equation of trajectory, we have to find out the equation of this track. So let a particle is projected with initial velocity u, make an angle theta. My main concentration is to find out the equation of that track.
कभी कभी इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे में कहता है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक पाथ, और प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर कैन गिव यू। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे करके लिखेंगे लेट, देखो कोई भी एक पॉइंट पे अगर इस ट्रैक को हमको फाइंड करना है तो उस कोई भी एक पॉइंट में ट्रैक का एक्स एक्सिस का पोजीशन एज वेल एज वाई एक्सिस का पोजीशन चाहिए। मानो हम बोला कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, तो वाई एक्सिस पे मतलब पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो एक्स एक्सिस पे पार्टिकल यहाँ पे है और वाई एक्सिस पे पार्टिकल यहाँ पे है कि नहीं? yes यहाँ पे पार्टिकल है मतलब एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है, वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, ये सर नो? yes sir तो लेट इन टाइम t particle travel x and y distance along x axis and y axis। ठीक है, हमने x and y माना, तो x axis का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u cos theta into t, yes or no? डिस्टेंस along x axis। सर ये वाला पार्ट एक बार फिर से बोलिए। अरे बाबा, वेलोसिटी along x axis रिमेन कांस्टेंट ना। हाँ सर। तो अगर तुम्हें ये x का डिस्टेंस पता करना है, अगर तुम्हें टाइम मालूम है, तो u cos थीटा इंटू टी लिख सकते हो ना। हाँ सर। तो यहां से हम टाइम का वैल्यू x बाई u cos थीटा लिख सकते हैं ना। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। यस सर। in that time distance or displacement travel in y axis का फॉर्मूला क्या है? s is y axis का फॉर्मूला क्या है? यही फॉर्मूला है ना। so y equals to u sin theta into t plus half g into t square, yes or no? यस। तो यहाँ पे हम u sin थीटा t का वैल्यू हम इक्वेशन एक 1 से x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g x बाई u cos थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस सर। So on the basis of that, x tan theta minus half g x by u cos theta whole square, is it okay? u कट गया तो sin theta tan theta, sin theta cos theta tan theta x tan theta half g x square by this, is it clear? यस sir. तो ध्यान से देखो, पहला बात है दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x, मतलब इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x वी गेट द वैल्यू ऑफ y, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ y वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, yes or no? यस। So that means I can say this is the this is called the equation of trajectory. अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का पावर 2 है, yes or no? यस सर। तो इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोलिक पथ बोल सकते हैं। पैराबोलिक पथ क्यों? जो भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा वही पैराबोलिक होता है, ये सब नो। यस। ठीक है, हाँ सर। यस। अच्छा,
अब इसमें देखो एक और बात हम लोग मेरे सामने में आ रहा है कि मेरे पास y का वैल्यू के लिए देखो y का दो रूट होगा, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x का पावर 2 है, 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक, मतलब मेरा सेम हाइट पे दो पोजीशन मिलेगा। ये सर नो? हाँ देखो सर। ये एक देखो, एक बार x1 दो रूट मिलेगा हमेशा। ये सर नो? अगर हम ओरिजिन लेंगे तो ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, हमेशा दो मिलेगा ना, एक जब ऊपर जा रहा है एक जब नीचे आ रहा है। ये सर नो? दैट्स व्हाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। So this derivation is also very important equation of trajectory. This derivation is also very important. So you can try this derivation. ठीक है? Okay? Okay? सर एक Yes. यस सर डन। Okay. अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन देता है, मानो एक फुटबॉल ग्राउंड है, ये एक गोल पोस्ट है, ठीक है, हाइट ऑफ द गोल पोस्ट इज 2 मीटर, और इससे मानो 10 मीटर दूर पे इससे ठीक 10 मीटर दूर पे एक प्लेयर है, ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, एक बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, मानो रोनाल्डो, ठीक है, 30 डिग्री एंगल में बॉल को किक किया। कितना डिस्टेंस से? टू 10 मीटर फ्रॉम द गोल पोस्ट, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल में किक किया। सो इज इट अ गोल और नॉट? टेल मी। कोई गोलकीपर नहीं है, सो इट्स अ गोल और नॉट? टेल मी। तो कैसे करोगे? देखो इसके लिए हम लोगों को जब भी ऐसा इक्वेशन होगा, द बेस्ट वे इज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अभी अभी हम लोगों ने देखा हाफ जी एक्स बाई यू कॉस थीटा ना, यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एक्स है, ये सर नो? तो ये जो बॉल यहाँ से जाएगा, अगर इस बॉल का हाइट, अगर इस बॉल का हाइट मानो ग्राउंड से, इफ द हाइट इज लेस देन 2 मीटर देन गोल। यस और नो? यस सर। अगर बॉल का हाइट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मीटर है तो गोल नहीं होगा। टू एग्जैक्टली 2 मीटर होने से बार पोस्ट पे लगेगा तो भी गोल नहीं है। यस और नो? यस। तो हमें देखना पड़ेगा when the ball is at a distance of 10 meter, what is the height of the ball? So देखो, for that I have everything. X I have 10, tan theta, tan 30 degree, half, the value of G is 10, X is 10, U is 20, cos 30 degree का स्क्वायर। तो ये करके देखो मेरा y का वैल्यू कितना आ रहा है। टेन इंटू साइन tan 30 is 1/√3 minus 5 into 10 into 10, या इसको अभी 10 रखो, 20 cos 30 is √3/2। तो ये गया 10, ये कट गया होल स्क्वायर। सो आया 10/√3 minus 5/3। सो 3 अगर ले लोगे, 10√3 minus 5, that is 10 into 1.73 minus 5/3
that is 17.3 minus 5 by 3, that is 12.3 by 3. 12.3 लगभग 4 point something आएगा ना, 4.1 meter. So 4.1 meter is greater than 2 meter. So the answer is no. Okay. Yes, sir. अब देखो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है. द इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल्स टू √3x माइनस g by 2x square. ठीक है. व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? बोलो. y का फॉर्मूला क्या था? x tan थीटा माइनस हाफ g x by u cos theta whole square था ना. देखो, if we compare this, I can say this is this one, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो tan थीटा कितना आएगा? So 60 degree. tan थीटा √3. समझ में आया? फिर देखो एक क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 कि द इक्वेशन ऑफ अ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल्स टू 12x माइनस 3/4x स्क्वायर. व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल? रेंज पूछा है, कितना है? ऑप्शंस आर 12 मीटर, 12 मीटर, ऑप्शन बी 16 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर. ट्राई करो, बोलो क्या होगा. कितना आया? हेलो, करो करो, जल्दी जल्दी करो. सर बस ये इक्वेशन दिया और रेंज निकालना है और कुछ नहीं है ना. हाँ, और कुछ नहीं दिया यार. ठीक है. कल तुम लोग का एग्जाम है ना? हाँ सर. Yes, कल sir. कौन सा दिन है? फ्राइडे? Thursday. थर्सडे. कल थर्सडे है ना? में इस बार मंगल बोर्ड का मैट्रिक में इस बार 89 जन को फर्स्ट हुआ है. अच्छा देखो, इस क्वेश्चन का वेरी सिंपल सा आंसर है कि ये जो y है, y को मैं 0 कर देता हूँ. क्यों? क्योंकि रेंज का मतलब क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0. ये सर नो? यस सर. तो एक तो देखो 0 होगा, दूसरा जो होगा मेरा रेंज होगा. मतलब x का 2 रूट आएगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. सो 12x माइनस 3/4x स्क्वायर. सो यहाँ से मैं अगर x को बाहर कर देता हूँ, 12 माइनस 3/4x. नाउ दिस इनटू दिस इज 0. वन कैन बी x is 0. Another one is 12 minus 3/4x is 0. So 3/4x is 12. X equals to 16 meter. Yes.
Okay, everyone? Yes, sir. अच्छा अब इसके अलावे देखो कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस है. They are very good type of question and very popular question. Question number 9 क्या बोला है कि two stones are projected with the same velocity v at an angle theta and 90 minus theta. ठीक है. If h1 and h2 are greatest height in the two parts, what is the relation between r h1 h2? So it's a very simple. देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है u square sin 2 theta by 2 theta by g. u लो v लो एक ही बात है. h रेंज 1 क्या हो जाएगा? 2 एंगल है तो पहला हाइट होगा u square sin square theta by 2g है ना. दूसरा वाला जो होगा u square sin square 90 minus theta by 2g. That means u square cos theta. square theta by 2g है ना. Yes, अब sir. तो ये दोनों के साथ इसको मुझे कोरिलेट करना है. कैसे कोरिलेट करेगा? देखो कोरिलेट करने के लिए थोड़ा सोचो. u ये sin 2 थीटा का मतलब क्या है? sin थीटा cos थीटा by g है ना. ये सुनो, ये सुनो. सर ये वाला एक बार रिपीट कर दीजिए. अरे बाबा sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 sin थीटा cos थीटा था ना. हाँ सर. तो sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है. अच्छा हाँ ठीक है सर. अब देखो इसको अगर हम हाइट के साथ रिलेट करें, यहाँ पे sin थीटा भी है cos थीटा है. खाली इसको स्क्वायर करो पहले. तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ मेरे पास क्या आएगा? 2 के जगह पे 4 आएगा. u का 4 हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा by g स्क्वायर. कैन वी राइट दिस? यस सर. अब देखो मुझे एक h1 है एक h2 है 2g है तो 2g भी मिल गया. अब इसको थोड़ा अरेंज करो. 4 को मैं बाहर रखा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by g u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा by g मैं लिख सकता हूँ इसको. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. yes sir तो इसका हाँ साथ सर. इसका क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे बाई 2 है तो इफ आई राइट बाई 2 कैन वी मल्टीप्लाई बाई 4? yes sir एवरीवन इज इट ओके? वर्षाली Yes, sir. বুঝতে পারছিস তো? Yes, sir. বাবু তোরা বলিস না কেন রে? চুপচাপ থাকিস কেন রে তোরা? তুই তো আগের দিন ভালো রেসপন্ড করছিলি, সেদিনকার ফর্মুলাটাও বললি. ওকে, সো দিস টু সি দিস ইজ h1 দিস ইজ h2. সো 4 into 4 কত হয়ে গেল? 16. h1 yes sir h2. Is it okay everyone? Can we write? Yes sir. So what is my r? 4 root under h1 h2. Clear? Done. Okay. Yes sir. Yes sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. ऐसा छोटा 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 बहुत सारा क्वेश्चन है. दे आर वेरी लवली क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 की क्वेश्चन है द एंगुलर प्रोजेक्टाइल ऑफ अ पार्टिकल फॉर विच the angular projectile for a particle for which horizontal range and maximum height are equal. Horizontal range and maximum height are equal. What is the angular projection? So anyone tell me what is the formula for horizontal range? U square sin 2 theta by g. And what is the formula for maximum height? U square sin square theta by 2g. Sin square theta by 2g. So सबसे पहले हम लोग u square को भगा सकता है, g को भगा सकता है.
2 sin थीटा का मतलब क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे मेरा हाफ sin स्क्वायर थीटा। तो हम एक sin थीटा को हटा सकता है, ये सर नो? हाँ सर। तो देखो इसको इधर ले आएगा, इसको इधर ले जाएगा, तो tan थीटा को हम 4 लिख सकता है, थीटा को हम tan इनवर्स 4 लिख सकते हैं, ये सर नो? हाँ सर। सो समझ में आया? ये भी एक सुंदर क्वेश्चन था। उसके बाद हाँ देखो एक और क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन, कि the horizontal range of a projectile is 4 root 3 times its maximum height, 4 root 3 times its maximum height, है ना? Horizontal range of projectile is 4 root 3 times its maximum height. Find its angle of projection. Find the value of theta. Options A. Try करो तो ये क्वेश्चन, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, क्या होगा बोलो? सर 30 डिग्री। पता है सर 30 डिग्री। बाकी लोगों का कितना है यहाँ? So 30 degree. 30 है ना? तो Yes, 30 sir. होगा, जब इतना जन मास बोल रहा है 30 तो 30 होगा। u स्क्वायर देखो सेम थिंग, u स्क्वायर sin 2 theta by g, that is 4 root 3 u square sin square theta by g, भगाओ इसको, 2 sin theta को यहाँ पे 2g है ना, 4 root 3 sin square theta, 1 2 गया, यहाँ पे 2 2 गया, sin theta गया, तो tan theta is 1 by root 3. Very good. Theta is 30 degree. So I think all of you understand this type of question. Yes or no? यस सर। अच्छा, इसके बाद जस्ट 1 मिनट मुझे दो। देखो एक क्वेश्चन है फ्रॉम माय शीट 30 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम NCERT 4.15. Okay, the question is that the ceiling of a long hall is 25 meter, and I'm again repeat this thing, when you solve NCERT question, so it's better with you calculator रखना, because some questions are calculative, so बिना नहीं तो अटक जाओगे फालतू का, and कुछ questions है जिसमें calculator का जरूरत नहीं है. These are very important question, because without calculator है तो you can directly solve this question. सर तो एग्जाम में कैसे करेंगे? ऑफलाइन में? एग्जाम में जो कैलकुलेटर वाला देगा नहीं, या देगा तो डेटा चेंज कर देगा.
ठीक है। Yes, और वैसे भी online- तो अभी ऑनलाइन में तुम्हें कौन देख रहा है कैलकुलेटर यूज कर रहे हो कि नहीं? अच्छा, बड़का 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 डायलॉग। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल 25 मीटर हाइट, ठीक है, एक हॉल का हाइट जो है 25 मीटर है। Ceiling of a long hall 25 meter height. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो देखो मैंने इसको मानो बॉल को ऐसे करके थ्रो किया, ये जस्ट टच करेगा, मतलब टच नहीं किया बट टच करेगा, उसके पहले नीचे आ गया, ये सब नो। हम लोग इक्वल कंडीशन लेंगे, ये सब नो। yes sir. तो H max का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो H max में लिखेगा 25, u का वैल्यू है 40 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 10। तो ये गया, ये गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 25 बाई 80। तो 5 5 25 पता जाए 16। तो साइन थीटा इज √5 by 4. Yes or no? Yes, sir. So what about cos theta? √1 minus sin square theta 1 minus 5 by 16। तो ये कितना हो जाएगा √11 by 4। सो हमें ये cos क्यों निकाला? क्योंकि मुझे निकालना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। तो u स्क्वायर 2 sin थीटा, हेलो, हाँ हाँ, जी का फॉर्म भरेगा, हमको पूछ रहा। अरे बाबा नेट देखो, हम क्या आईआईटी जी का कोचिंग का मालिक है क्या? आईआईटी का साइन थीटा √5/4। अब बोलो मुझे क्या मालूम जी का फॉर्म कब निकलेगा? मेरा आईआईटी कोच थोड़ी है मुझसे परमिशन लेगा, सर निकाल दो फॉर्म। ओके भाबचे तो ओवरऑल you get this one 20 into √5 into √11, and now you can imagine it's without calculator. For me at least very tough. So with calculator I get the value 148.47 meter. Okay, স্যার এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া করব কি করে? √11 কিভাবে বের করব? এইভাবে রেখে দিবি। ওকে স্যার। ठीक है, next question is हो गया ये क्वेश्चन? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, सो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, मेरा शीट का 30 और यहाँ पे जो है दैट इज 4 पॉइंट, ओहो सॉरी माय शीट 31 एंड हियर इट इज 4.16। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal range of 100 meter. Okay. How much high above the ground can the cricketer throw the ball? ये maximum ऊपर कितना हाइट तक वो बॉल को फेंक सकता है? Try this question. H max is how much? Okay. Maximum का फॉर्मूला u square by 2g, theta is 45 degree. So maximum range का फॉर्मूला है u square by 2g, that is 100. So u square is 100 into 2 into 10, that is 2000. Is it clear? अब देखो इसको बच्चा लोग गलती क्या कर देता है, H max का जनरल फॉर्मूला होता है u square sin square theta by 2। हाँ मैंने गलती कर दिया ना, सर जी होगा, u square by g होगा ना? हाँ सर, लेकिन यहाँ पे 2g होगा ना?
वहां पे तो होगा, यहाँ पे तो गलती कर दिया ना। तो यू स्क्वायर इज, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 कहाँ से आया, 1000। अब देखो एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब बच्चा लोग गलती क्या करता है, बच्चा लोग सोचता है कि ये 45 डिग्री में है तो इसका मैक्सिमम रेंज निकाल देता है। तो अगर इसका मैक्सिमम रेंज निकालोगे तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 10, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी है, सॉरी, 2 sin 45 1/2, that is 25 आंसर। so this is the wrong answer, okay? ये मत करना। देखो तुमने अगर मैक्सिमम रेंज करोगे, ये जो हाइट मिलेगा दैट इज एच मैक्स, और इसको अगर हम वर्टिकली फेंकेगा तो ये इससे काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। तो बोला है क्वेश्चन में, समझो क्वेश्चन बोला है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल। बोला नहीं है कि हमको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा, नहीं बोला है, बोला है कि मैक्सिमम कितना। तो मैक्सिमम के लिए हम इसको वर्टिकली फेंकेगा, वर्टिकली फेंकने के लिए एच मैक्स, ये जो मेरा थीटा है, थीटा को 90 डिग्री में अगर हम फेंकता है, थीटा को अगर हम 90 डिग्री में फेंकता है तो मुझे मैक्सिमम रेंज मिलेगा। तो याद रखना इसका आंसर होगा यू स्क्वायर बाई 2g, नॉट 45 डिग्री, नॉट 45 डिग्री, क्लियर? नॉट 45 डिग्री, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, सो इस हिसाब से 1000 बाई 2 into 10, so the answer is 50 मीटर। So that's it for today. नेक्स्ट दिन हम लोग इसका एक और करेंगे, एक और क्लास मुझे